اور یہاں پر آپ کو بتائیں تفصیلی خبریں، آپ کو بتائیں کہ رمضان کریم شروع ہوتے ہی منافع خور روایتی انداز میں میدان میں اتر چکے ہیں اور انتظامیہ اپنے ریٹ قائم کرنے اور اشیاء خورونوش کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے۔ جبکہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں حیدرآباد میں ہمارے نمائندے ارشد انصاری سے۔ جی ارشد انصاری، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، ہم یہاں موجود ہیں میٹرو ون نیوز کی ٹیم حیدرآباد میں فقیر پوری کے مقام پہ۔ یہ مین چوراہا ہے جہاں پہ کئی مارکیٹ ہیں، یہاں فروٹ مارکیٹ، سبزی مارکیٹ، گوشت مارکیٹ اور مچھلی مارکیٹ میں موجود ہے۔ یہاں علاقہ مکین جو خریدار ہیں ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں اضافہ چلا ہے، ماہ سیام ابھی شروع ہوا ہے، فروٹ، سبزیاں، دیگر مسالہ جات، گوشت اور کئی چیزوں میں قیمتوں میں اضافہ چلا۔ آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں خریداروں سے کہ کس طرح کی صورت حال ہے، کیا ہے اس طرح کی مہنگائی ہوئی۔ بجٹ مہنگائی تو ہو چکی ہے، جیسے تربوز کی رقم 30-70 روپے کلو تھی، آج وہ 100 روپے بک رہا ہے۔ گولاچی جو ہے تقریباً 100 روپے تھا، آج وہ 150 روپے ہو گیا۔ مہنگائی تو بڑھ ہی رہی ہے، مہنگائی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ مطالبہ یہی ہے کہ مہنگائی ختم ہونی چاہیے۔ رمضان میں تو رمضان کا پیکیج دینا چاہیے، سستائی ہونی چاہیے۔ اور ملکوں میں دیکھ لو آپ کتنی سستائی ہے، ایک ہمارا ہی ملک ہے جس میں اور مزید مہنگائی پہ مہنگائی ہوتی چلی گئی ہے۔ فروٹ والوں سے معلوم کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ منوں کے حساب سے مل رہا ہے، ہمیں آگے سے مہنگا مل رہا ہے تو اس لیے ہم بھی مہنگا بیچ رہے ہیں۔ سبزیوں کی بھی یہی صورت حال ہے، سبزیوں میں بھی تقریباً یہی معاملات چل رہے ہیں۔ انتظامیہ کا تو کچھ پتہ نہیں ہے بھائی ابھی کوئی۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں خریدار تھے اور دیگر خریداروں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں انتظامیہ کہیں دکھائی نہیں دیتی، نہ ہی کوئی چھاپے مارتے، نہ ہی کوئی نرخوں کو چیک کرتے دکھائی دیتی ہے۔ یا فروٹ مارکیٹ میں بھی یا خریدار کے علاوہ یہاں جو فروٹ کی جو فروخت کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آگے سے مہنگا آ رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، یا اس لیے مہنگا مہنگنے میں مجبور ہے۔ اعلیٰ حکام سے شہریوں نے مطالبہ کیا کہ ماہ سیام کے اندر اس طرح کے پیکیج دینا چاہیے کہ جس سے عوام کو ریلیف حاصل ہو سکے۔ جی، خانے وال کے سستے رمضان بازار عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں۔ شہری کہتے ہیں سستے رمضان بازاروں میں بھی مہنگائی اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں خانے وال سے ہمارے رپورٹر صلاح الدین مرزا کی اس رپورٹ میں۔ خانے وال میں بھی رمضان بازار جہاں عوامی ریلیف کے نام پر ارباب اختیار کی تصویروں کے ساتھ ساتھ چند اشیاء خردونوش پر ریلیف دیا جاتا رہا ہے، اس بار بھی سب کچھ ویسا ہی ہے، لیکن نہ کسی وزیر اعلیٰ نہ وزیر اعظم کی تصویر موجود ہے۔ شہری بھی اس صورتحال پر حیران ہے۔ یہاں پہ بازار کا ریٹ اور رمضان بازار کا ریٹ سب برابر ہے۔ یہاں پر وزیر اعظم پاکستان نہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہاں پہ کوئی تصویر ہے، اس کی وجہ سے انتظامیہ بے بس ہے۔ رمضان بازار اور مارکیٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، یہاں بھی 80 روپے ہے، مارکیٹ میں بھی 80 روپے ہے۔ یہاں پر 2 گھنٹے لائن میں لگے ہیں، شناختی کارڈ پر 2 کلو چینی ملی ہے۔ خانے وال کے رمضان بازار میں غیر معیاری آٹا اور سبزیاں فروخت کی جا رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ غریب بندے آئے کیسا سے کیتی بیٹھے ہیں، صرف وہ گلیاں سڑیاں سبزیاں رکھی بنے تو ریٹ ہی وہ بازار والا ہے۔ گھی کا ریٹ بھی وہی ہے، چینی کا ریٹ بھی وہی ہے، ہر سودے کا ریٹ وہی ہے۔ رمضان بازار کا کیا فائدہ لگے گا؟ یہ وزیر اعلیٰ کی نہ کوئی تصویر ہے، نہ کوئی فوٹو ہے، نہ کچھ ہے لگی ہوئی۔ ہر بندہ اپنی مرضی کے ریٹ لگا رہے ہیں، سبزی بھی وہی، بازار بھی وہی سبزی کا ریٹ ہے، یہاں رمضان بازار میں بھی وہی ریٹ ہے۔ سابقہ تمام سیاسی اداروں میں رمضان المبارک کے موقع پر عوام کو ریلیف دینے کے نام پر ذاتی تشہیر پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے رہے۔ رہی بات مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی، نہ وہ پہلے ہو سکی نہ اب ہو پا رہی ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ صلاح الدین مرزا، میٹرو ون نیوز، خانے وال۔ کوٹدو سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پر نواحی علاقے دائرہ دین پناہ میں 13 سالہ لڑکی کو اغوا کرنے کے بعد بدفعلی کی کوشش کی گئی۔ پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا مگر لڑکی کا میڈیکل نہیں کرایا جا رہا ہے۔ متاثرہ لڑکی اور اس کے ورثہ کو صلح کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں کوٹدو کے نمائندے محمد یعقوب سے۔ محمد یعقوب، بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ جی شکریہ، میں اس وقت کوٹدو کے نواحی علاقہ دائرہ دین پناہ میں موجود ہوں۔ تھانہ دائرہ دین پناہ کے چند گز کے فاصلے پر کل کا ایک معاملہ سامنے ہے، جو 13 سالہ جو بچی ہے اس کے ساتھ 2 نامعلوم شخص نے زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ ایک کو بچی نے پہچان لیا جس کا نام اون ہے۔ پولیس نے فوری طور پر FIR تو درج کر دی، مگر اب جو مدعیان ہیں ان پر جو ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ صبح ان کو بلایا گیا، ذوالفقار ASI نے ان کو بلایا تھانے اور ان کو تھپڑ بھی مارے۔ میرے ساتھ وہ اہل علاقہ بھی موجود ہے، مزید میں انہی سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہاں تو کئے تھپڑ مارے تھے، کیا گال آ کے؟
जुल्फकार थानेदार ने साकू सड़वाया जाए वाले उथा जबरदस्त है कि तुसा ई काम करो चाहे मेरे आखण ते खड़दे ठीक अन्य वाला रतो का तोड़े होते ना पर्चा थी आप आने तराव ज्यादा दबाव सटन पाएगा सादे होते साख संदा क्या संस्था कोई और करने करंदा से घर में सादी एफआईआर कटी पे साख क्या चाहिए साख सिर्फ इंसाफ चाहिए बस जुल्फकार वाला जबरदस्ती चाटा मारन पाए मैं कस जो अंदर बाय गेट बाहर बांध के दिनते ने बाल बच्चे नाल हन सारे अंदरों सारे पुलिस वाले इकट्ठे देगा जब तो का से हाल नहीं जाने चाहते तो साडे आखण ना मने सो इनमें जबरदस्त रिश्वत तोरे को लोकाई कितने पैसे की देना रिश्वत एक तान ड्राइवर डाल नाल जरा आया है पहले उन्हें वडेरे को में चावल आया है उन आके जो भाई तेल दा 1000 रुपया ने मैं को दो चा गड्डी दा 1000 रुपया देते से पहले उन्हें दो पुलिस वाले में आए हन उन्हें घर में आखण जो भाई अपना छुआर पेश करो उन्हें भी सारे ने 500 रुपया गिद्धे अच्छा तुसा दसे तुसा इन वाले से भी बे तोरे छुआर को काहे थप्पड़ मारन क्या ना है क्यों मारे जुल्फकार ने मारे ना सारा नहीं क्यों मारे क्या बस ई वजह से अंदरों बिलावना चाहता केस को कच्चा करना चाहते उडो पैसा की दी बैठे ये सारा ना जायजी करना बे उन्हें के तुसा इसका फैसला दे के गए असा के असा नहीं देंदे इस चीज को असा जरा मिलना चाहते हैं वह साकू इंसाफ मिलना चाहिए साकू भी कशा नहीं मिलनी चाहिए जी जैसा कि आपने सुना है इनका यही कहना है कि जुल्फकार एएसआई ने हमें फ़ोन किया तो आप थाने आ जाओ जब हम थाने गए तो वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देने लगा है मुद्दायान पर कल इनकी बच्ची के साथ ज़्यादती की कोशिश की जा रही थी तो इन्होंने एफआईआर करवाई अब वो जो है इनका ये मुतालबा किया जा रहा है कि इन लोगों पुलिस वालों ने उनसे भारी रिश्वत ली है और अब हमें धमकियाँ दी जा रही हैं कि उनके साथ सुलह कर लो वरना मैं आपके ऊपर एफआईआर दे दूंगा जी बहुत शुक्रिया आपने तफसीलात बताई फिरोजवाला में माह रमजान के आते ही अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी जो गरीब आवाम की पहुंच से दूर हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा राना अवेस कोट अब्दुल मालिक में मौजूद हैं। जी राना अवेस, क्या अहवाल है, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला के इलाका कोट अब्दुल मालिक में। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ निकला अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लगी। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं जो कि ख़रीदारी करने के लिए आए हैं। मज़ीद इनसे जानते क्या कहेंगे जी इस हवाले से, जी बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। यही कहना चाहेंगे ये जैसे रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो इन्हें बजाय के चीज़ें कोई रिलीफ देना चाहिए आवाम को, और ये ऐसा नहीं हो रहा। ये जैसे कि हर ये ज़रूरत की चीज़ें महंगी दर महंगी हुई जा रही हैं तो इन्हें इस बारे में कुछ सोचना चाहिए, आवाम का भी सोचना चाहिए ना, बजाय कि अपने सियासी हालात को छोड़ के। जी बिल्कुल, अपने सियासी हालात छोड़कर आवाम के बारे में भी सोचना चाहिए। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे भी जानते क्या कहेंगे जी हवाले जी। बिल्कुल, अभी घी की कीमत देख रहे हैं फिलहाल बहुत ज़्यादा 460 रुपये तकरीबन किलो है, तो इनको चाहिए घी में कुछ रिलीफ देना, चीनी में रिलीफ देना, और दाल में ये बहुत चीज़ें महंगी हैं, आवाम की पहुँच से बाहर है, इन्हें कुछ रिलीफ देना चाहिए आवाम को। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि घी चीनी दाल जो है वो ज़रूरत के मुताबिक घरों में इस्तेमाल होती है, उनकी कीमतों में जो है वो कमी लाई जाए ताकि जो माह रमज़ान में जो सैरी और अफ्तारी करने वाले अफराद जो हैं वो आसानी तरीके से चीज़ें ख़रीद कर अपनी सैरी और अफ्तारी आसानी से कर सकें। जी राना अवेस, आपका बेहद शुक्रिया। लुड्डन से आपको खबर देंगे और बताएं कि लुड्डन पुलिस ने मनशिया डीलर के मुनज़्ज़िम गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 65 लाख रुपए मालियत की 1 मन से ज़ायद मनशियात बरामद कर ली है, जबकि इस सिलसिले में खातून समेत 4 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बैनुल-अज़लाई मनशियात डीलर्स गैंग के दीगर अरकान नदीम बलू से 5 किलो चर्स बरामद हुई है। खातून स्मगलर से 2.5 किलो अफ्यून बरामद हुई है, जबकि तमाम मुल्ज़िमान का ताल्लुक एक ही बैनुल-अज़लाई गिरोह से है। मुल्ज़िम सज्जाद मरकजी डीलर है जो दीगर तमाम अरकान को सप्लाई देता था, जो दर्जन से ज़ायद मुकदमात में मुलव्वस था। थाना लुड्डन ने तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। DPO तारिक अजीज़ का मज़ीद कहना था कि मनशियात फरोशों के लिए जिला विहाड़ी में कोई जगह नहीं है। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद का रेडियोलॉजी अस्पताल में ज़ेरे तामीर तौसी ब्लॉक पहुंच गए। मंसूबे के मुकम्मल होने के बारे में ब्रीफिंग हासिल की। कहते हैं मंसूबे जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाएं ताकि आवाम को रिलीफ दिया जा सके। मजीद तफसीलात जानते हैं कमर जहान की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न डॉक्टर इरशाद अहमद का कार्डियोलॉजी अस्पताल मुल्तान में ज़ेरे तामीर तोसीही ब्लॉक का दौरा।
डॉक्टर इरशाद अहमद ने तरक्याती मंसूबे बारे ब्रीफिंग हासिल की। इस मौके पर कमिश्नर मुल्तान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना था कि मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। मंसूबे की तामीर से कार्डियोलॉजी अस्पताल में मरीजों का बोझ कम होगा, जबकि ब्रीफिंग में बताया गया कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर फर्श का काम मुकम्मल हो चुका है। बिजली और रंग रोगन का काम शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर डायरेक्टर डेवलपमेंट रुबीना कौसर, डॉक्टर फरहान भी कमिश्नर मुल्तान के हमरा थे। कमर जहान, मेट्रो वन न्यूज, मुल्तान। करोड़ पक्का से खबर देते हुए आपको बताएं कि करोड़ पक्का नया बनाया जाने वाला रिंज ज्यादा रोड करप्शन की नजर हो गया है, जबकि रोड पर नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने के साथ साथ रोड के किनारे लगे लाखों रुपए मालियत के दर्जनों दरख्त कटवाए जाने लगे हैं। मजीद देखते हैं करोड़ पक्का से हसनैन खान रिंद की इस रिपोर्ट में। करोड़ पक्का नए बनाए जाने वाले रिंद ज्यादा रोड पर ठेकेदार ने करप्शन शुरू कर दी है। रोड पर नाकिस मटेरियल के साथ साथ रोड के किनारों पर दर्जनों लाखों रुपए के कीमती दरख्त बगैर नोटिस के कटवाए जा रहे हैं, जबकि जमीन मालकान का कहना है कि दरख्त हमारी जमीन में है, ना कि रोड की हदूद में। हमें किसी किस्म का नोटिस दिए बगैर हमारे दरख्त कटवाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद हुसैन है। सुबह मैं यहाँ आया हूँ तो ये हमारा ज़मीन है, यहाँ पे दरख्त लगे हुए थे 3 और माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े थे। तो यहाँ पे लोग लगे हुए थे और उसकी कटाई कर रहे थे। मैंने यहाँ आकर उनसे बात की कि भाई आप कौन लोग हो, ये दरख्त हमारे हैं और क्यों काट रहे हैं आप लोग। तो उन्होंने कहा कि आप इसके मामे लगते हैं, बल्कि उन्होंने गालियाँ शुरू कर दी। उसी वक्त जो है ना उन्होंने गुंडे बुला के मेरी अच्छी खासी जो है ना उन्होंने पिटाई की है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। हकाम बाला से अपील है कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सवेरे इतला मिली है जना फिर सारे दरख्त कटींदे गए। मेरे भतीजा तो मैं आए हैं, मेरे भतीजे को कुत्ता मारे ने, मेरी बेइज्जती की ने, इज्जत की। छोटे छोटे दरख्त ने सारे पट्टियां ने रत्ती बोतल फुआरा था मरे ने को आप नंबर ला दे सारे पट्टियां ने। असा सरकारी कह नहीं, ना बंदे सरकारी ना इना कोई कागजात हैं। रोड को हट दे 6-7 फुट बजरी सट्टी पई उना को हट दे खड़े होने दरख्त ओही पट्टियां ने। इन्या को पूछे भी क्यों पट्टी पाए आज सारे तो सा जरा कुछ करेंगे कारगिनो असा पटेस। अहले इलाका का मजीद कहना है कि रोड करप्शन के साथ साथ सुस्त रवि का भी शिकार हो चुका है, जिसकी रुख करेंगे विहाड़ी का। आपको बताएंगे विहाड़ी के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद खिजर अफजाल चौधरी ने मुख्तलिफ मराकज़ खरीद गंदम का दौरा किया। मराकज़ खरीद गंदम में किसानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत की गई। मराकज़ खरीद गंदम किसानों के बैठने और साए का इंतजाम भी किया गया है और कमेटियां भी बनाई गई हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद खिजर अफजाल चौधरी का कहना था कि किसी भी शिकायत की सूरत में शिकायत कमेटियां किसानों के मसाइल फौरी हल करेंगी। गंदम खरीदारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है, किसानों को बारदाना की फराहमी जारी है। और यहाँ आपको बताएं शकरगढ़ से, जहां पर शकरगढ़ का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मैदान जंग बन गया। पुलिस की मौजूदगी में 2 ग्रुपों ने डंडों का इस्तेमाल किया और अस्पताल इमरजेंसी के शीशे भी तोड़ डाले, जबकि इस सिलसिले में नवाही इलाके में झगड़े के फरीकैन मेडिकल अस्पताल लीगल लेने पहुंचे तो दोनों फरीकैन आपस में झगड़ पड़े। पुलिस थाना सिटी बीच बचाव करवाने के दौरान हाथापाई का शिकार हो गए। दौरान झगड़ा डंडों सोटों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया, एक दूसरे पर गमले फेंके गए और तोड़फोड़ भी की गई। दौरान झगड़ा पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। रुख करेंगे सियालकोट का। आपको बताएंगे खूनी खेल वन व्हीलिंग के खिलाफ सियालकोट पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। मजीद 22 मंचले गिरफ्तार करके मोटरसाइकिलें बंद कर दी गईं। थाना हाजीपुरा पुलिस ने सहरी के वक्त सड़कों पर उधम मचाते हुए वन व्हीलिंग, रेसिंग और स्टंट बाजी जैसे खतरनाक करतब करके अपनी और दूसरों की जिंदगियों को खतरे में डालने वाले 22 मंचलों को गिरफ्तार करके पाबंदे सलासल कर दिया। मुलजमान के कब्जे से मोटरसाइकिलें बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। 2 रोज कबल भी 25 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए थे। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।